شروع کرتا ہوں یشوع مشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ بہت شکریہ کہ آپ وقت پر آ گئے تاکہ ہم اپنے سیشن کو جہاں پر سے ہم نے اپنی بات کو چھوڑا اسی سے آگے چلیں گے۔ تو دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ابلیس کو گلوریفائی نہ کریں۔ یہ جو چائنا پروڈکشن ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس کو دابے مارنے سے، اور میں آگ لگاتا ہوں ابلیس کو، ٹھڈے مارتے ہیں، اتنا کودتے ہیں، اڈیاں مارتے ہیں زمین پہ، اور اتنے اچھلتے کودتے ہیں، دھونسلیاں جماتے ہیں، روب ڈالتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ میں تو بڑی شے ہوں، اور ساتھ سننے والے کرتے جائیں گے ہیلیلویا ہیلیلویا، پریز پریز، ہیلیلویا۔ بھئی ڈر رہے ہو یا کیا ٹینشن لگ گئی آپ کو؟ آپ خدا کے سامنے دعا کر رہے ہو۔ آپ جاؤ کسی افسر کے سامنے اور وہاں پر جا کے اس طرح ہلا لالا شروع کر دو، کیا وہ آپ کو اپریشیٹ کرے گا؟ وہ آپ کو خوش ہوگا کہ آپ بڑے اچھی طریقے سے تمیز کے ساتھ بات کر رہے ہو؟ یہ تمیز نہیں ہے۔ تحمل کے ساتھ، گھٹنے ٹیک کے، اوندے منہ ہو کے، اور ہاتھ اٹھا کر سجدے میں جا کر ایلیا کی طرح آپ دعا کر سکتے ہو، یشوع ناصری کی طرح، شاگردوں کی طرح، داؤد کی طرح۔ آپ دیکھو انبیاء کرام کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے دعا کرتے ہیں۔ آپ دیکھو بائبل کے آئینے میں کہ آپ کے چہرے پر کس طرح کے غلط داغ دھبے اور نجاست لگی ہے، آپ اس کو صاف کرو، کیونکہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جا رہے ہو۔ ٹی وی دیکھنے کے لیے آپ اٹھ بیٹھتے ہو، لیکن دعا کرنے کے لیے پنجابی میں جو کیا کہتے ہیں کہ لک ٹوٹ جاندہ ہے، ادھر گدی پکڑانا، ذرا یہ کرسی کر دینا، میں اس کے ساتھ ٹیک لگا لوں۔ اب تجھے کیا مصیبت پڑ گئی ہے دعا کرتے ہوئے؟ آپ دیکھو اپنے آس پڑوس، دیکھو ہندوؤں کو، دیکھو وہ شنان کرنے کے بغیر پرارتھنا نہیں کرتے۔ سکھوں کو دیکھو، وہ نہاتے ہیں، اپنے بال بناتے ہیں، اور پھر جا کے تو وہ باقاعدہ 5 جو ککے ہیں ان کے، کچھا، کنگا، کڑا، کرپان، اور تب وہ سب چیزوں کے ساتھ مل کے پھر پاٹ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو دیکھو، جو وضو رکھا گیا ہے اور جو اس میں قیام ہے، پھر اس میں سجدہ ہے، رکوع ہے، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ انسان سستی میں نہ پڑے۔ آپ کیسی قوم ہو؟ منہ نہیں دھونا، تیاری نہیں کرنی، اپنے آپ کو ایکٹیو نہیں کرنا، اور برکتوں کے لیے آپ اتنے زیادہ کلیم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، ڈیمونسٹریشن کرتے ہو، خدا کے سامنے ہنگامہ کرتے ہو۔ کئیوں کو میں نے سنا وہ کہتے ہیں جی آج کل میں دعا نہیں کرتا، میں خدا کے ساتھ ناراض ہوں۔ لے بھائی، تو ناراض ہے تو خدا کا کیا نقصان کر لے گا؟ اس لیے اپنی دعا سے اس میری تھیوری کو ذرا آپ تھوڑا سا تجربہ کر کے دیکھیں۔ جس سے آپ پیار کرتے ہو نا، آپ اس کا جتنا مرضی نام لو، گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں، ماں باپ بھی خوش ہوتا ہے، بیوی بھی خوش ہوتی ہے، دوست بھی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ سب آپ اسے پیار کرتے ہیں۔ جس نے آپ کا نقصان کیا ہو، آپ کے بچے کو نشے پہ لگا دیا ہو، آپ کی بیٹی کو غلط رستوں پہ لگا دیا ہو، اور اس نے کسی کی عزت کو خراب کر دیا ہو، کسی کی کمیٹی کو کھا گیا ہو، کسی کے موٹر سائیکل کو لے کے بھاگ گیا ہو، کسی کا شیشہ توڑ دیا ہو، تو فوراً لوگ کہتے ہیں اس کا نام نہ لو، وہ بڑا شیطان ہے۔ اب خدا کے سامنے آپ اس کا اتنا نام لے رہے ہو جس نے خدا کی خوبصورت کریشن انسان کو ورگ لگا کے عدن سے نکالا، اور نہ صرف عدن سے نکلنے کے لیے اس کے لیے رستے ہموار کر دیے، بلکہ اسی انسان کے ہاتھ سے موت نے جنم لے لیا۔
मौत का मौजद वो इंसान बन गया, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, और वो मौत जो है राज करना शुरू हो गई। यहाँ तक कि कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल, कोई परहेजगार, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बादशाह, कोई अमीर, कोई फकीर, कोई भी नहीं बचा, वो सबको मार देती है। ये उसने काम किया है। और आप जब दुआ करते हो तो दुआ स्टार्ट ही इसी से करते हो, मुझे शैतान से बचा, मुझे इब्लीस से बचा, उस इब्लीस ने ये कर दिया, शैतान ने ये कर दिया। किसी जगह पर भी कोई हंगामा होता है, कोई बम ब्लास्ट होता है, किसी जगह पर कोई भी खराबी पैदा हो जाती है, तो फिर पूछते हैं किस तंजीम ने ये मान लिया है कि हमने किया है। और फिर वो जो मुखालिफ तंजीमें हैं, जो बागी लोग हैं, वो फ़ौरन कह देते हैं हमने किया है, ताकि हुकूमत डर जाए। अगर उन्होंने किया है या नहीं किया, ऐसे ही वो जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं ताकि हुकूमत सहमी रहे, लोग डरे रहें। और आप खुद ब खुद खुदा के सामने जाके कह रहे हो कि इब्लीस ने किया है, इब्लीस ने किया है, शैतान ने ये किया है, शैतान ने। भाई तुम छोड़ो इस बात को। जो तुम्हारी ज़रूरत है सिर्फ खुदा के सामने ये कहो, ऐ बाप मुझे नौकरी की ज़रूरत है, ऐ बाप मुझे औलाद की ज़रूरत है, ऐ बाप मुझे सेहत की ज़रूरत है, ऐ बाप ये आज बादल हैं तो मुझे फ़लाँ जगह पे जाना है, मुझे अच्छा मौसम चाहिए, मुझे तू प्रोटेक्शन में ले चल। तो ये नहीं कि ये भी इब्लीस ने कर दिया, वो भी इब्लीस ने कर दिया, बादल आ गए और जी शैतान ने देखो बदल भेज देते, और ये देखो जी आज ये भी शैतान ने। आप तो इतना उसको कर देते हो कि उसको हर चीज़ का कादर मुतलिक, वो मुतलिक तो है लेकिन कादर नहीं है। कादर तो सिर्फ रब्बुल अफवाज है। तो इन अपने तरीके को बदलो, अपनी सोचों को बदलो, क्योंकि यही है जिसने इस हद तक मौत को बढ़ा दिया है। और बार बार दाऊद इसका जिक्र करता है कि मुझे बेबाकी के गुनाह से बचा ले, जो मुझ पर गालिब है, ताकि मैं कामल हो जाऊं। और बेबाकी का यही है, ये भी गुनाह है बेबाकी का, जो लस्ट है, जो खिंच है आपके अंदर, जिसके आप एडिक्टेड हो चुके हो। या दुआ में आप ऐसी बेबाकी करते हो कि कई एक मैंने बुजुर्ग औरत को देखा, वो दुआ कर रही है, वो इब्लीस को गालियां निकाल रही है जिससे ये कर दे उसका। एक मैंने खादम को देखा, वो कह रहा है खुदावंद मैं इसको आग लगाता हूँ। ओ भाई मीकाईल उसको नहीं कुछ कह रहा, वो कहता है खुदाई तुझे मलामत करे। तो तुम किस तरह के पास्टर हो? कोई आग लगा रहा है, कोई बांध रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। बाइबल की रूह में देखिए कि आप कहीं ऐसे गुनाह के गुलाम तो नहीं बन गए, कोई गुनाह आप पर इतना गालिब तो नहीं आ गया कि आप मुकम्मल तौर पर ना कहते हुए भी आपके मुंह से इब्लीस को प्रेज करते हो। इब्लीस का हम दो तरह की एक प्रेज, एक है हालेलुया। हलल का मतलब होता है, ये इब्रानी लफ्ज़ है, हलल का मतलब होता है नारा, लो या हल, तो इसका मतलब या की प्रेज। अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि अल्लाह की तारीफ। और जब आप किसी का ज़्यादा नाम लेते हो तो आप उसको प्रेज करते हो, उसको बड़ा करते हो, उसको बढ़ाते हो। तो इसलिए इसको कंट्रोल करो, अपने जज्बात को कंट्रोल करो, अपने लफ्ज़ों को कंट्रोल करो, ताकि ये आप पर गालिब ना आए। आगे बढ़ते हैं तो देखिए कि रूमियों के ख़त में आप पढ़ते हैं 7वां बाब उसकी 23वीं आयत, तो आपको पता चलेगा कि लोग रो रहे हैं, लोग करा रहे हैं कि किस तरह से हम बच जाएं इस मौत से, इस दर्द से। 7वां बाब उसकी 23वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नज़र आती है जो मेरी अकल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ,
इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा, मुझे कौन छुड़ाएगा। करा रहा है रूमियों का मुसन्नफ पालूस ये कह रहा है, मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। मौत तो ले ली अंदर, मौत तो इंसान के अंदर बादशाही कर रही है। जैसे मैंने पहले भी ये हवाला पढ़ा है कि पस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। अब वो करा रहा है कि कौन छुड़ाएगा। और जब हम इसको ऊपर देखते हैं कि जो मर गया, वो जो मरा है वो मौत से आज़ाद हो गया। कौन सी मौत? जो गुनाह उसको हर रोज पीसता है, हर रोज उसको। ये 7वीं आयत है, छठे बाब की 7वीं आयत में लिखा है। तो इसलिए मैं इन बातों के लिए आपको बार बार कहता हूं कि आप एक्टिव रहें। 7वीं आयत, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। दाऊद कहता है कि मुकद्दसों की मौत खुदा की नज़र में गिरां कदर है। पालूस कहता है, हाय मुझे मौत के बदन से कौन छुड़ाएगा। और फिर छठे बाब की 7वीं आयत में कहता है, जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। किसने ये मौत को फायदामंद कर दिया? ये भी एक बड़ा खुदा का करम है। अगर ये मौत ना आती तो फिर ये इंसान कराहता ही रहता। आप अंदाज़ा करो, ज़रा ख्याल करो कि कोई 90-96 साल का हो, कोई 100 साल का हो और हड्डियाँ बन चुका है और आंखें धुंधला चुकी हैं, लेकिन मौत नहीं है, और ज़ख्म है, ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन मौत नहीं है। कितनी भयानक ये दुनिया बन जाए। ये खुदा का करम है, उसने इसी मौत को एक और रंग दे दिया ताकि ये इंसान जो है इससे वो आने देता है। मौत वो बचा सकता है। एक टाइम आता है, आप खुद देखिए कि ख़ानदानों में जो बुज़ुर्ग हैं, नाना नानी पड़नानी, तो बच्चे बड़े सब ये कहते हैं पता नहीं इस माई ने कब जाना है, इस बाबे ने कब जाना है। तो अगर वो जाए ही ना, तो जब ये मौत तो इसने मांग ली, खुदा से तो दूर हो गया, अब ये जिस्म मौत के बदन से कौन छुड़ाएगा। दुआएं करवाते हैं, पादरी साहब दुआ करो साड़ी माई बड़ी दुखी है। यूरोप में, अमेरिका में लोग डॉक्टरों के पास ले जाते हैं, वो इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि वो मर जाए। मौत के बदन से कौन छुड़ाएगा? जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। और फिलिपियों के खात में लिखा है, पालूस कहता है, मरना मेरे लिए नफा है, क्योंकि जो कोई जिंदा रहता है वो गुनाह में फंसा रहता है, उससे कोई ना कोई गलती होती रहती है। और वाइज की किताब में लिखा है 4 बाब में, फिलिपियों आप हवाला लिख लें, फिलिपियों 1 बाब उसकी 21वीं आयत, और वाइज को आप देख लें कि वाइज क्या कहता है। वाइज जो सुलेमान की किताब है, सुलेमान का नाम वाइज भी है, तो आप वाइज की किताब उसका 4 बाब और उसकी आयत आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। 2री आयत लिखा है, पस मैंने मुर्दों को जो आगे मर चुके, उन जिंदों से जो अब जीते हैं ज़्यादा मुबारक जाना, बल्कि दोनों से नेक बख्त वो है जो अब तक मुआ है, जो अब तक पैदा हुआ ही नहीं, जिसने वो बुराई जो दुनिया में होती है नहीं देखी। क्या बात है, बड़ा बादशाह हुआ है, ग्रेट हुआ है। इस तरह का बाइबल कहती है कि ऐसा बादशाह ना हुआ है ना होगा। और वो क्या कहता है कि जो मर चुके हैं उन जिंदों से जो अब जीते हैं ज्यादा मुबारक है, वो ज्यादा खुश नसीब हैं, वो ज्यादा ब्लेस्ड हैं जो मर चुके हैं, क्योंकि जो मर गया वो गुनाह से बरी हो गया। फिर वो या अपनी यही वाइज की किताब उसके 7वें बाब में कहता है, ये भी आप मेरे साथ हवाला देख लें, जल्दी हवाला निकाल लिया करें।
7वां बाब उसकी पहली आयत, नेक नामी बेश बहा इतर से बेहतर है और मरने का दिन पैदा होने के दिन से। नेक नामी बेश बहा इतर से बेहतर है और मरने का दिन पैदा होने के दिन से बेहतर। वो मरने के दिन को कहता है ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो जो मर गया वो गुनाहों से आज़ाद हो गया। इस वजह से जो कोई भी इस तरह से ज़िंदगी गुजारता है खुदा की कुर्बत में, खुदा उसको अपने हिसाब से, अपने प्यार से इस तरह से लबरेज कर देता है कि बलाम कहता है काश कि मुझे सादकों की मौत नसीब हो, और खुदा खुद फरमाता है कि मुझे मेरी हयात की कसम शरीर की मौत से मुझे कुछ खुशी नहीं। और बलाम कहता है काश कि मुझे सादकों की मौत नसीब हो, और दाऊद कहता है कि मुकद्दसों की मौत खुदा की नज़र में गिरां कदर है। ये मौत जो तबाही, बर्बादी, गम, मायूसी, परेशानी, आंसू और मौत का चश्मा है, इसको खुदा ने इस तरह से बदल दिया है कि सुलेमान कह रहा है वो मुबारक हैं जो मर चुके हैं। दाऊद कहता है गिरां कदर हैं जो जा चुके हैं, और बलाम कहता है काश मुझे सादकों की मौत नसीब हो, और पालूस कहता है हाय मुझे मौत के इस बदन से कौन छुड़ाएगा। और खुदा कहता है कि मुझे सादकों की मौत जब होती है, सफनिया की किताब में लिखा है, वो उनको खुशी के साथ रिसीव करता है, लेकिन साथ ये भी है, कलाम मुकद्दस यूं फरमाता है कि मुझे मेरी हयात की कसम, खुदा कहता है शरीर की मौत से मुझे कुछ खुशी नहीं। उसने अगर शरारत हो गई, खराबी हो गई, इंसान वर्ग में आ गया, उसने मौत को जन्म दे दिया, मौत अब आगे जवान हो गई, मौत सब में फैल गई, पर उसका तोड़ है कि अगर इसी मौत के जिस्म में रहते हुए हम पलट जाएं और माफ़ी मांगें और खुदा के सामने इस बात का इकरार कर लें कि जो मेरे आबा अजदाद ने किया, जो मेरे बाप आदम ने किया, जो हवा ने किया, जो मुझसे हुआ, मुझे माफ़ कर, ऐ खुदा मुझे माफ़ कर और मुझ पर रहम कर, ताकि मेरा इस दुनिया में रहना और इस दुनिया से जाना फ़ायदा मंद हो। जैसे पालूस कहता है कि मरना मेरे लिए नफ़ा है और जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। तो आप भी अपने ऊपर इस बात की मोहर लगा सकते हैं कि अब मौत मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे खुदा ने इस मौत को मेरे लिए फ़ायदा मंद कर दिया है। क्योंकि पहले इंसान ज़मीन पर रहता था, अब अगर कोई मसीह को कबूल करके मर जाता है तो वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में चला जाएगा। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। यस्सु ज़िंदगी देने के लिए आया है। अगर आप यस्सु को कबूल कर लेते हैं, यस्सु पर ईमान ले आते हैं, तो मौत आपके लिए खुदा के पास रहने का टिकट है। अगर आप मसीह को नहीं मानते, तौबा नहीं करते, पलटते नहीं, पछतावा नहीं करते, मुड़ नहीं जाते, तो यही मौत आपके लिए अबदी तबाही, अबदी बर्बादी और खुदा की दूरी। और यही इब्लीस चाहता था कि इंसान खुदा से दूर रहे। इब्लीस को पता ही नहीं था कि ये इंसान, और इंसान को ये बताया किसने कि तू हमेशा खुदा के पास रह सकता है? वो है रूहुल कुदस। रूहुल कुदस ने इंसान के अंदर ये बात डाल दी कि अभी तेरे पास मौका है, जल्दी जल्दी यस्सु का हाथ पकड़ ले, जल्दी से इकरार कर दे कि मैं गुनाहगार हूँ, तो तू इसी मौत के घोड़े पर बैठकर हमेशा की ज़िंदगी में चला जाएगा। और अगर तू ये ना कहेगा तो इसी मौत के घोड़े पर बैठा हमेशा की तबाही और बर्बादी में चला जाएगा, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। अपना वक्फा कर लें, फिर हम मिलेंगे और तीसरे सेशन में जाकर हम आगे बात को कंटिन्यू रखेंगे।
Have a nice time. God bless you.